Hello students, कैसे हो आप सब लोग? Guys, I welcome you all in our next session of INMO flashback series. In this series, guys, we are solving previous year INMO questions. As I said, from the year starting with year wise solve कर रहे हैं हम इसको. Starting from year 2000 to 2007 हम solve कर चुके हैं. And right now currently we are solving INMO 2008. And so far, guys, आप पुराने सारे videos from 2000 to 2007 जो year के videos हैं, so 8 years के questions हैं सारे solved हैं. That you can find on our channel. Okay, they have already been posted. So, and also first 4 questions of INMO 2008 have also been posted. Okay, you can have a look at them easily, right? आप देख सकते हो चैनल के ऊपर posted है. We have even made up a playlist as well. Okay, with the name of INMO flashback. So guys, in this today's video, we are going to solve 5th question of INMO 2008. Okay, the question is based on geometry, guys. So before starting, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay, and I've been teaching mathematics for the past 9+ years since graduating, basically for various competition exams like IIT JEE, Maths Olympiads, and KVPY, etc. All those competition exams. Okay. So guys, without any delay, let us start the question that we have to do today, है ना, जो discuss करना है. So guys, okay, let me delete the video image for the time being because as such question के अंदर diagram नहीं दिया हुआ था. So because it takes time otherwise in the video to draw the diagram from scratch, so मैंने इसलिए पहले से रखा हुआ था. I'll bring it back, but guys before that I'll suggest you guys please read the question and try the question out by yourself. अपने आप से attempt करो question को, right? So that you don't, you have to give it a try. Otherwise आपको इतना easily अच्छे से मजा नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा फिर आज का solution. Basically you'll not be learning learning up to full extent, I would say. ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूं diagram. So this is the question as such. Please read the question and pause the video. You can try it out by yourself. तो guys अगर आप solve कर पाते हो then that is well and good. But अगर नहीं भी होता है guys, you should at least attempt it for at least 1.5 hours to 2 hours, right? Otherwise कोई मजा नहीं है. अगर आप solution देख लोगे ना straight forward, see, generally speaking आपको कोई फायदा नहीं होगा. अगर मैं आपसे 15 दिन बाद फिर से पूछ लूंगा ना, you'll get stuck at solving. You'll not be able to do it completely A to Z. Solve नहीं कर पाओगे from start to end. You'll get confused, you'll get breaks. है ना, इसका मतलब आपको समझ नहीं आया होगा अच्छे से. So please try this question first and then only see the solution. Alright. So guys, I hope सबने देख लिया, कर लिया try इस question को. So let us discuss this question now. So I'll bring back the diagram. So diagram मैंने पहले से draw करके रखा हुआ है. So after reading the question, I'll explain the diagram कि क्या कर रहे हैं. So the question is, alongside diagram मैं आपको साथ साथ में explain करता जाऊंगा. ABC is a triangle, right? आप देख सकते हो ABC यहाँ पे triangle बना हुआ है आपके पास. Okay, where with tau A, tau B, tau C, B3 equal 3 equal. ये बात इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पे ध्यान रखना. B3 equal disjoint circles. Disjoint का मतलब है कुछ ओवरलैप नहीं हो रहे हैं. Inside ABC तीनों अलग अलग सर्कल्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने शो भी किया हुआ डायग्राम के ऊपर. O1, O2 और O3 सेंटर के साथ 3 सर्कल्स बने हुए हैं. दे आर विद इक्वल रेडियस गाइस. 3 इक्वल सर्कल का मतलब क्या है? इक्वल रेडियस. एंड लेट दैट बी x. उसको x मान लेते हैं, ठीक है गाइस. सो लेट दैट दिस डिस्टेंस बी x. ओके, दिस डिस्टेंस इज x. ठीक है, तो टच कर रहे हैं. पहला सर्कल AB AC को टच कर रहा है, सेकंड सर्कल AB और BC को टच कर रहे हैं, थर्ड सर्कल इज टचिंग BC एंड AC, राइट? ऐसा दिया हुआ है. तीनों रिस्पेक्टिव साइड्स में से टेकन 2 एट अ टाइम, दो साइड्स को टच करने वाला है. जैसे O1 सर्कल आप देख रहे हो, BC को टच नहीं कर रहा है, सिर्फ पहले 2 को कर रहा है, साइड्स को. ठीक है, इस तरह से आपने 3 सर्कल्स बना दिए x रेडियस के. ओके, नाउ नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है? लेट टाउ, एक और सर्कल है, बी अ सर्कल टचिंग द सर्कल्स टाउ A, टाउ B, टाउ C एक्सटर्नली. अब तीनों को टच करने वाला एक और सर्कल, इन 3 सर्कल्स को एक्सटर्नली टच करने वाला ये वाला सर्कल है गाइस, जो इंटरनल दिख रहा है आपको, ये वाला. ठीक है, एंड लेट्स से सेंटर इज P. उसका सेंटर P है, करेक्ट? सो गाइस लेट मी शो यू. मैं सिंपल सी चीज दिखा देता हूं आपको पहले. सो एग्जैक्टली सबसे पहले यहीं पे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं गाइस. लेट अस ड्रॉ सिंगल सिंपल कंक्लूजन डायरेक्टली फ्रॉम हियर. एंड व्हाट इज दैट कि गाइस अगर आप इस P सेंटर से देखो, जो सर्कल एक्चुअली बना हुआ है उसका रेडियस तो सेम रहेगा कुछ, ठीक है. इफ यू जॉइन इट विद O1 सेंटर, ठीक है, तो गाइज जो ये होगा, तो आप ये सोचो गाइज, जो ये PO1 डिस्टेंस है, इजंट दैट सम, इसका रेडियस कुछ R मान लेता हूं, R plus X, राइट? जस्ट फॉर शोइंग.
द पॉइंट इज इसका जो भी रेडियस होगा, राइट, पी सेंटर, जो ये टाउ सर्कल है जो सबको टच कर रहा है, लेट मी नेम इट एज वेल, दिस सर्कल इज टाउ, राइट, दिस इज टाउ। तो टाउ सर्कल का कुछ रेडियस है, अब उसका कुछ रेडियस है, तीनों सर्कल्स को टच भी कर रहा है, एंड तीनों जो सर्कल्स हैं वो छोटे, उन सबका रेडियस भी सेम है। सो वुडंट आई बी एबल टू से, फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं पे कंक्लूड करते हैं, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं पासिंग थ्रू O1, O2 एंड O3, उसका सर्कम सेंटर भी P ही होगा। ओके, लेट मी राइट द सर्कम सेंटर, ओके, द सर्कम सेंटर ऑफ O1, O2, O3 will be the center of tau, है ना, of the circle tau, उसका सेम सेंटर होगा, राइट। सर्कम सेंटर ऑफ O1, O2, O3 will be the center of tau. Why? Because P पॉइंट से ही तीनों O1, O2, O3 का डिस्टेंस भी सेम है, सो P शुड बी सर्कम सेंटर ऑफ दैट सर्कल, एंड P एनीवेज उन सर्कल्स को टच करने वाले सर्कल का भी सेंटर है, बिकॉज द रेडियस, बिकॉज वो इंक्रीज सेम अमाउंट उससे हो रहा है, राइट, R प्लस एक्स सेम अमाउंट से हो रहा है, इसलिए वो सेंटर सेम रहेगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्कम सेंटर ऑफ टाउ और द सेंटर ऑफ द सर्कल टाउ इज द सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू O1, O2, O3। तो दोस्त आप ये बोल सकते हो कंसेंट्रिक सर्कल्स होने चाहिए, राइट, बिकॉज P को ही अगर सेंटर रख रहे हो आप, अपने एक सर्कल बनाया हुआ है टाउ, उसमें रेडियस x ऐड कर दो तो O1, O2, O3 तीनों से पास कर रहा है, राइट, सो दैट इज मैचिंग। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। ओके, so I'll remove this line, so I just drew it to so that you are able to understand it better। चलो अभी बना रहने देते हैं, it will not be anyways needed। ओके, तो गाइस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द सर्कम सेंटर O, ये O सर्कम सेंटर बच्चे ABC का है, ABC ट्राइंगल का सर्कम सेंटर है O, एंड द इन सेंटर I ऑफ ट्राइंगल ABC, I पहले से ABC ट्राइंगल का इन सेंटर है, passes through the center of tau। मतलब बेसिकली गाइस मुझे ये प्रूव करना है I, P एंड O आर कोलिनियर। ठीक है ना, मैं पहले से लिख के दिखा देता हूं। टू प्रूव क्या है अपना, बेसिकली टू प्रूव इज दैट I, P, O आर कोलिनियर अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जो नाम दिए हुए हैं, I, P, O आर कोलिनियर, दैट इज अवर टू प्रूव स्टेटमेंट, राइट। सो सबसे पहले आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने छोटा सा कंक्लूजन पहले से ड्रॉ कर लिया कि जो P जो सेंटर होगा O1, O2, O3 का भी सर्कम सेंटर है। ओके, ऑलराइट, अब शुरू करते हैं गाइस क्वेश्चन। सो गाइस अब ये तो समझ में आ गया, P उसका सर्कम सेंटर है, ठीक है, वो हो गया अपना काम। सो आई एम सपोज टू फाइंड सो दैट I, P, O आर कोलिनियर। ठीक है, अब स्टार्ट यहां से करते हैं गाइस। लेट्स से द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल इज R। ठीक है, सो बच्चे I देखो एक चीज का बात समझते हैं गाइस, जो B को O2 को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी वो एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए, है ना, ऑफ कोर्स दैट इज द कंडीशन ना, क्योंकि O2 का डिस्टेंस AB और BC से इक्वल है, राइट, AB और BC से इक्वल है, तो BO2 जो लाइन है दैट शुड लाई ऑन द BI लाइन, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर ही लाई करेगा। सेम विद AO1 एंड CO3, है ना, AO1 एंड CO3, ये जो दो तीनों इस तरह से लाइन ज्वाइन करने वाली होंगी वो एंगल बाइसेक्टर्स के ऊपर ही होंगे, है ना, O1, O2, O3। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आई रिपीट अगेन, O1, O2, O3 जो हैं दे आर लाइंग ऑन देयर रिस्पेक्टिव एंगल बाइसेक्टर्स इटसेल्फ, और कुछ नहीं, है ना। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो इक्विडिस्टेंट होता है कंटेनिंग लाइन से, राइट। सो एंगल O2BL इज इक्वल टू एंगल O2BE, ये एंगल बाइसेक्टर है। सो बेसिकली आप बोल सकते हो BO2I इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, होना ही पड़ेगा, राइट, दैट इज नोन नाउ। ठीक है, सो गाइस लेट अस अंडरस्टैंड नाउ। अब हम क्या करते हैं टू सॉल्व दिस थिंग, व्हाट वी आर सेइंग इज ड्रॉ परपेंडिकुलर्स और प्रोजेक्शंस ऑफ I, P एंड O ऑन BC। ओके, ड्रॉ, या फिर ड्रॉप बोल देता हूं, ओके, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम I, P एंड O, okay, on BC, and we are naming them D, X and K as shown in the figure, okay, as D, X and K। ठीक है, D, X और K नाम से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए फ्रॉम I, P एंड O as you can see। ठीक है, so we'll be using the general notation guys, ट्राइंगल ABC के हिसाब से करेंगे सब कुछ, है ना। so guys be focused on one thing, ID का डिस्टेंस कितना होगा, I से
इन सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो सर्कल के ऊपर, सॉरी लाइन के ऊपर, दैट इज बेसिकली द रेडियस ऑफ द इन सेंटर ना, इन सर्कल, ठीक है। तो ये कितना होगा, आर होगा, राइट। सो डी आई डिस्टेंस इज आर, सिंपल, डी आई विल बी इक्वल टू आर, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, राइट। सो गाइज नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस। सो गाइज एक बात देखो, इन ट्राइंगल बी आई डी O to L is perpendicular also. So O to L and this line and this line are parallel, right? ये दो triangle similar होंगे, right? This is parallel to this, so I'll write here also. So triangle BLO2 is similar to triangle BDI, right? Simple है, एक साइड पैरेलल है, O to L is parallel to ID, मतलब आप बोल सकते हो ऐसे। So एक क्राइटेरिया से आप बोल सकते हो कि सिमिलर हो जाएंगे, just like that, or you can use BPT as well. So guys, what I would be able to write, BL upon BD will be equal to LO2 upon DI, right? ऐसा लिख सकता हूं। From this thing guys, what will be the length of BL? देखो LO2 की वैल्यू कितनी है, that is x, radius of the small circle, x है वो radius, into BD मल्टीप्लाई हो रहा है guys, what is the length of BD? Very interesting, very simple। जब गाइज आप, मैंने यहां पे, या देखो डायग्राम में गाइज इन सर्कल शो नहीं किया हुआ है, बट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना वो इन सर्कल का, डी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ इन सर्कल, सो दैट इज गोइंग टू बी एस माइनस बी, राइट। वी ऑल नो दैट। मैं जल्दी क्विकली आपको एक बता देता हूं डायग्राम रफ में यहां पे, ठीक है, रब इट ऑल्सो। तो आप देख सकते हो गाइज, कोई ट्राइंगल है अगर आपके पास, ओके, इफ यू हैव अ सर्कल एंड दिस इज द इन सर्कल लाइक दिस, राइट। सो यहां से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे गिरता है। So this is triangle A, B and C. This distance is equal to this distance. Both are S minus B, right? This like this. क्योंकि opposite side D होती है तो ये S minus B आते हैं। यहां से ये point of tangency का distance है ना। So in this case actually D is that point of tangency. I से perpendicular आप drop कर रहे हो, that is the left line ना। D is the point. D is going to be the point of contact of that incircle with the side BC. So BD distance कितना आएगा, S minus B, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पे, BD कितना है, S minus B आएगा। सो बी केयरफुल फॉर दैट, है ना। BD आ गया आपके पास अपॉन DI। तो गाइस DI कितना है, दैट इज द सर्कम इन रेडियस R। सो BL की लेंथ आ गई आपके पास x अपॉन R इंटू S माइनस B, राइट, दैट इज क्लियर। सो BL की वैल्यू आ गई गाइस। सो गाइस वेरी मच सिमिलर वे, इन अ वेरी मच सिमिलर वे यू कैन फाइंड CM। इधर से भी तो सेम लॉजिक लगा सकते हो ना। सो आई राइट दैट ऑल्सो। अब मैं सिमिलरली करके लिख देता हूं, ठीक है। ओ सॉरी गाइस, ऑलराइट। So guys, or you can say triangle CMO3 is similar to triangle CDI, मतलब सेम तरीका है, देखो, है ना। So I'll write it directly. Similarly, CM upon CD is going to be MO3 upon DI. So same way, write down the CM value. CM कितना आ जाएगा गाइज, MO3 की वैल्यू कितनी है, अगेन x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD सिमिलरली। सो गाइज इधर से देखो, अगर ये पॉइंट D है, CD की वैल्यू कितनी आएगी, S माइनस C, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी S माइनस C डिवाइडेड बाय DI कितना है, R है अगेन, राइट। सो गाइज आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो BL आ गया आपके पास, CM आ गया। गाइज कैन यू फाइंड LM हियर नाउ, व्हाट इज द लेंथ LM। और एक बात और भी सोचना गाइज, O2, O3, M and L, it's forming a rectangle itself, right? एक rectangle बन रहा है ना, right? This is forming a rectangle. तो can I find the length of LM first? ठीक है, LM की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल BC लेंथ कितनी है, ओके, राइट, BC माइनस BL माइनस CM, राइट। सो BC is A minus BL is X times S minus B upon R, right? Minus CM is X times S minus C upon R. So guys, you can solve this thing. Up 1 upon R common, okay, you can add it first. A minus, guys, इसमें से X by R common निकाल लो. You'll have S plus S. So 2S minus B minus C, right? This is what will happen. I am combining the second two terms, second and third terms. ठीक है, the last two terms. So X by R common आ जाएगा अगर आपके पास, minus X by R common. So inside you will have S minus B plus S minus C. It will become 2S minus B minus C. And guys, do understand, S is what?
ए जनरल एस की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू. सो गाइस 2s माइनस बी माइनस सी, दिस विल बी इक्वल टू ए इटसेल्फ, है ना, ए बचेगा. So guys, what is the length of LM? Let us understand this. So LM is equal to A minus x by r times A, right? ये आ गया. So that will be A common, A by r common, right? A by r common निकाल लो, you'll write r minus x, right? Guys, this is one of the important point. LM आ गया आपके पास, right? So guys, don't you think that the same distance will also be equal to O2 O3? Okay, ध्यान से समझते हैं. O2 O3 भी तो सेम ही होगा because it's forming a rectangle. ये भी 90 है, right? This is 90, this is 90 as well. तो ये rectangle बन रहा है, ठीक है ना. और height भी तो सेम है, x and x is also the same. So O2 O3 की BC से height भी सेम है और दोनों से perpendicular drop हुआ rectangle बन गया आपके पास, right? So LM is also going to be equal to O2 O3. करेक्ट. नाउ गाइस डू अंडरस्टैंड, जो P पॉइंट है आपका वो O2 O3 से इक्वली डिस्टेंट है, राइट? कैन वी से दैट? सो कैन आई से नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, Px क्या है, P क्या है? Px परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था आपने LM के ऊपर, सो इट इजंट आल्सो गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू O2 O3, राइट? आई विल राइट हियर Px इज परपेंडिकुलर टू LM और BC को किया था मैंने, it is perpendicular to BC, which will mean now Px is perpendicular to LM, वो तो सेम ही बात होगी. और you can say Px is perpendicular to O2 O3, right? वो भी तो परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर होगा. रेक्टेंगल था ना, उसके एक पैरेलल साइड थी, उसके पैरेलल के साइड के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा. एंड गाइस डू नोट दैट PO2 is equal to PO3, उसका सरकम सेंटर है वो, राइट? So that's like perpendicular bisector of O2 O3, right? It's perpendicular bisector. So that means Lx will be equal to Lm, xm. Can we say that? Lx will be equal to xm. This is very important because it's a rectangle and perpendicular bisector. मैं लिख देता हूं as Px is perpendicular bisector of O2 O3 of O2 O3. ठीक है, तो मैं ये चीज बोल सकता हूं, नहीं तो मैं इसको थोड़ा उधर लिख देता हूं, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ O2 O3. करेक्ट. यहां तक तो आई होप सबको क्लियर हो गया. O2 O3 के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. सो वुड आई बी एबल टू फाइंड Lx? Lx तो फाइंड कर सकता हूं, इसका मतलब दैट विल बी हाफ ऑफ Lm. तो गाइस आई नीड टू स्क्रॉल डाउन अ बिट, ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं. Okay, now see. So guys, what is going to be Lx? Lx is going to be half of Lm. Now how much is that? A by 2r into r minus x. इसका हाफ हो जाएगा यहाँ पे, राइट? तो गाइज Lx की वैल्यू आ गई आपके पास. सो गाइज आई विल टेल यू अपना अप्रोच क्या है, हमें क्या करने की कोशिश कर रहा हूं. देखो, इफ आई वांट टू प्रूव दैट आई पी ओ आर कोलिनियर एंड वहां से मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए हैं. देखो 3 पैरेलल लाइंस हैं पासिंग थ्रू आई पी एंड ओ. सो गाइज इफ आई एम एबल टू प्रूव दैट आई पी इज टू आई ओ, आपको पता है ना 3 पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल ही जो होती हैं वो कट करती हैं सेम रेशियो में. आई एम ट्राइंग टू यूज दैट प्रॉपर्टी. सो इफ आई एम एबल टू प्रूव दैट dx इज टू dk, है ना, dx इज टू dk इज द सेम रेशियो एज ip इज टू io, देन IPO विल बी कोलिनियर. कोलिनियर होने पड़ेंगे, कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता उस लाइन के ऊपर जो उसको सेम रेशियो में कट करता हो. करेक्ट. सो दैट इज व्हाट वी आर एमिंग टू प्रूव. एंड गाइस अब मैं dx और dk में डिस्टेंसेस ढूंढ सकता हूं, दैट इज जस्ट अबाउट सम कैलकुलेशन पार्ट. ठीक है. तो गाइस देखो, हाउ डू आई फाइंड dk? dk की वैल्यू कैसे ढूंढूंगा? नाउ डू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ dk. O जो है वो ABC ट्राइंगल का सर्कम सेंटर है. जब हम परपेंडिकुलर वहां से ड्रॉप करते हैं, BC इज अ कॉर्ड ऑफ दैट सर्कल, राइट? सो OK इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC आल्सो ना. ये भी तो लिखते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे. जो OK है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, राइट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, तो OK कितना आएगा? ओ सॉरी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ BK? दैट इज गोइंग टू बी a by 2, राइट? पूरी लेंथ ये है तो a by 2 हो गया. सो गाइस हाउ विल आई फाइंड dk फर्स्ट? या चलो पहले dx फाइंड करने की कोशिश करते हैं. मुझे bx मालूम है क्या? bx तो मालूम नहीं है,
Alright, we know BL. Do we know LX? है ना? We know BL as well as LX. So let us find BX first. Okay, let us find BX first. BX is BL plus LX. BL plus LX. तो दोनों पता है, ऐड कर देते हैं. BL कितना है? X upon R into S minus B हमने फाइंड किया था, प्लस LX is A by 2R into R minus X. राइट, तो ये आ गया हमारे पास. गाइज व्हाट वी कैन डू हियर इज 1 अपॉन आर कॉमन निकाल लेते हैं, 1 अपॉन 2R कॉमन निकाल लेते हैं, और या कुछ और करें. ओके ओके, लेट अस राइट दिस डाउन, नथिंग नो प्रॉब्लम. सो यहां पे क्या आएगा गाइज, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट इज 2s माइनस 2b, मैं अंदर लिख रहा हूं पहले से, प्लस 1 upon 2R आपने कॉमन निकाल लिया, सो a टाइम्स r माइनस x. राइट, दिस इज व्हाट इट इज अगेन. ओके, सो लेट मी स्क्रॉल डाउन, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अभी. सो गाइस देखो यहाँ पे 2s को मैं रिप्लेस कर सकता हूं a प्लस b प्लस c, सो आई गेट 1 upon 2R x कॉमन. नाउ अंदर क्या आएगा, 2s की वैल्यू a प्लस b प्लस c. ओके, लेट मी राइट हियर, दिस 2s इज a प्लस b प्लस c. डू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. तो एक b कैंसिल हो जाएगा, यू लेफ्ट विद a प्लस c, you'll be left with a plus c minus b plus ar. ओके, अब ध्यान से समझते हैं, इसको ओपन करते हैं, ar minus ax. दिस इज व्हाट इट इज. सो आपको दिख रहा है गाइस, ax कैंसिल हो रहा है ना, इसको एक्सपैंड करोगे ax एंड ax आर गेटिंग कैंसल्ड. राइट, सो व्हाट विल इट बिकम, देखो 1 upon 2R कॉमन है, इनसाइड you'll get ar, है ना, ar माइनस, मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, माइनस x टाइम्स b माइनस c. दिस इज व्हाट इट इज. एक्सप्रेशन आ गया, मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, ओपन कर लेता हूं. सो फर्स्ट टर्म विल बी a by 2, दिस इज a by 2 माइनस x by 2R इंटू b माइनस c. दिस इज द लेंथ ऑफ bx. तो ये bx आ गया आपके पास, ठीक है. तो दैट इज द लेंथ ऑफ bx फॉर यू. तो गाइज अब bx आ गया मेरे पास, bd भी मुझे मालूम है, आई शुड बी एबल टू फाइंड dx. ओके, so what is the value of dx? Dx is going to be bx minus bd. So let us put it down. A by 2 minus a by 2R b minus c minus what is bd? s minus b, है ना. bd कितना था, हमने अभी लिखा था पहले, that is s minus b, यहां पे लिखा था, करेक्ट. that is minus of s minus b. ओके, हम इसको guys s minus b की जगह, ओके चलो s minus b लिख देते हैं, then I'll simplify. This is s minus b. So guys, now all we have to do is simplify all of this. थोड़ा लिखना पड़ेगा. So let me write here. So a by 2 minus a by 2R into b minus c minus, guys s को क्या लिखते हैं, okay, और you can say काम और कर सकते हैं, we can take 2 common. Okay, let me write this thing. Okay, let me take 1 upon 2 common out of the whole thing. 1 upon 2 common, ठीक है. अब अंदर क्या आएगा, a minus a by r into b minus c minus this will become 2s minus 2b फिर से, right, and that is 1 upon 2 a minus a by r times b minus c, right, minus now 2s is again a plus b plus c, तो क्या खुलेगा वो, a minus b plus c बन जाएगा. right, now it is interesting guys, आप देख सकते हो फिर से, ये वाला a और ये वाला a कैंसिल हो गया, a and a gets cancelled. एंड आप देख सकते हो बाकी दोनों टर्म्स में से आप b माइनस सी कॉमन निकाल सकते हो. इट्स लाइक टेकिंग b माइनस सी कॉमन, राइट. सो गाइस क्या बचा, 1 अपॉन 2, कीप इट आउटसाइड. अंदर क्या बचेगा देखो, मैं लिख देता हूं आराम से. सो फर्स्ट टर्म इज b माइनस सी, ओके, माइनस a टाइम्स b माइनस सी अपॉन r. यही बना ना, राइट. b माइनस सी, अगर इस नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाते हैं तो b माइनस सी बना, और यहां पे भी b माइनस सी है, सो 1 माइनस a बाय r आ जाएगा. सो गाइस नाउ व्हाट आई कैन राइट इट इज एज b माइनस सी तो कॉमन ही निकाल लेते हैं, ठीक है, बाई 2 भी पड़ा हुआ है. सो इनसाइड आई विल हैव, बाकी r भी कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, r माइनस a, राइट. दिस थिंग इज क्लियर. सो dx की वैल्यू आ गया आपके पास b माइनस सी अपॉन 2 टाइम्स r इंटू r माइनस a, राइट. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. सो dx आ गया. The next step is guys finding dk. Well, let me show you the diagram now. Okay, what is dk? dk कितना आएगा यहां से, that is bk minus bd. That's quite easy. bk minus bd.
ओके मैं लिख देता हूं, व्हाट इज गोइंग टू बी, सॉरी डी के इज गोइंग टू बी बी के माइनस बी डी, करेक्ट। अब गाइस बी के कितना था, मैंने अभी आपको बताया था बी के इज a by 2, राइट। मैं दोबारा शो कर देता हूं, व्हाट इज बी के, दैट इज सर्कमसेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो ना, बी के कितना है a by 2 है, मैंने शो भी किया था यहाँ पे। एंड व्हाट इज बी डी, दैट इज s माइनस बी, माइनस s माइनस बी, ये बन जाएगा। सो गाइस अगेन लेट अस टेक द एलसीएम, 1/2, तो a माइनस 2s प्लस 2b अपॉन 2, सिंपल ही आ जाएगा। तो गाइज व्हाट इज 2s, दैट इज a प्लस b प्लस c, सो a माइनस b माइनस c प्लस 2b अपॉन 2, सो दिस विल गेट कैंसल्ड, a और a कैंसिल हो गया। एंड ऑल्सो माइनस b प्लस 2b बन गया b, सो b माइनस c बाई 2, सो dk इज वेरी सिंपली b माइनस c बाई 2, राइट गाइज, यहां तक आई होप क्लियर हो गया, करेक्ट। ओके राइट, सो नाउ गाइस dx आ गया, dk आ गया, अपना काम हो गया अब काफी, तो राइट वी हैव फॉर्म द वैल्यू ऑफ dx, मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज द वैल्यू ऑफ dx, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ dk, राइट। जस्ट डिवाइड दीज टू, राइट, इसको इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ओके आई एम राइटिंग इट डाउन इन द राइट हैंड साइड, सो गाइस व्हाट इज dx अपॉन dk, यू कैन सी b माइनस c तो कैंसिल हो जाएगा, b माइनस c बाई 2, राइट। So b minus c by 2 whole value is dk. So dx upon dk is going to be r minus a, right, upon r. That's it. So r minus a upon r आ गया. That is the ratio of dx upon dk. I hope that is clear. ठीक है, that is clear ना। अब गाइज आते हैं उस डायग्राम के ऊपर, अब बहुत सारी चीजें और सोचते हैं। तो dx upon dk आ गया। The next point is finding ip upon io. And that is very interesting guys कि कैसे फाइंड करेंगे। Okay, let me show you the diagram here. Okay, guys एक चीज नोटिस करो, what is the length of lm? We did find that, right? This is the length of lm, that is a by r times r minus x. guys देखो अगर lm जो है वो O2 O3 के इक्वल है ना, ऐसे ही O1 O2 भी तो आ जाएगा। हर तीनों साइड जो हैं O1 O2 O3 की, all the three sides will be parallel to the sides AB BC CA, right? ये बात तो क्लियर हो रही है। O1 O2, I can write it here. So O1 O2 is parallel to AB, right? O2 O3 जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ही था पहले, is parallel to BC, and O3 O2 is parallel to CA, right? These things we already know, हमें पता है इसका लॉजिक, है ना। ये तीनों साइड्स पैरेलल होंगी, है ना। तो गाइस बेसिकली आप ये देख सकते हो, और उसी प्लेन पे बनी हुई है, इसी तरह से पैरेलल बनी हुई है, एंड वो सिमिलर आएगा। क्यों सिमिलर, कैसे आ रहा है गाइस, देखो जो एंगल O2BL है वही एंगल ये वाला एंगल भी है, राइट, IO2O3, बड़ा सिमेट्रिकली गाइस जो I पॉइंट है दैट इज ऑल्सो ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ O1 O2 O3, है ना। आई विल जस्ट शो यू बाय जॉइनिंग द लाइंस बेसिकली। ओके मैं गाइस आपको एंगल दिखाने के लिए कर रहा हूं ये सब, ठीक है। सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस। ओके ऑलराइट, आई विल शो यू विद दिस ब्लू कलर। सो गाइस देखो जो एंगल मैं लिख देता हूं सब, IO2O3 जो ये वाला एंगल है, दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस एंगल, राइट। सिंपल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये तो। एंड इन अ वेरी सिमिलर वे दिस एंगल, राइट, this angle ABO2 is also going to be equal to this angle. ये भी corresponding angles हैं because ये सारी lines parallel है ना। This line is parallel to this line is parallel to this, and third भी होगी इसी तरह से। So you guys can understand कि O1 O2 O3 का जो angle bisector है वो भी I पे ही intersect करेगा similarly, right? So that is an important point, that I is also in center ऑफ ट्राइंगल O1 O2 O3, उसका भी इन सेंटर आएगा I, राइट। ये बन रहा है एंगल बाइसेक्टर ही बन रहा है ना। O2I इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर ऑफ O1 O2 O3, BI भी था तो वो स्ट्रेट लाइन ही थे, है ना। तो I इज ऑल्सो द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल O1 O2 O3। तो अब IP अपॉन IO में कैसे फाइंड करने में हेल्प करेगा
गाइस सी, अब एक बात सोचो, O1 O2 O3 इट इज सिमिलर टू ABC, प्रोपोर्शनल है दोनों, राइट होंगे ना दोनों प्रोपोर्शनल। रादर आप ये चीज देख सकते हो, LM को देख सकते हो, इट्स बेसिकली A टाइम्स R माइनस एक्स अपॉन आर, सारी साइड्स क्या होंगी R माइनस एक्स अपॉन आर टाइम्स होंगी उसकी, राइट क्योंकि पैरेलल तो है ही, मैंने आपको उसके हिसाब से शो करके दिखाई दिया, तीनों साइड्स पैरेलल है, एंगल सारे सेम होंगे तो सिमिलर होंगे दोनों ट्राइंगल्स। बट हाउ दे आर सिमिलर, आप ऐसे सोचो, यू कैन बेसिकली इमेजिन द फिगर लाइक कि ABC ट्राइंगल था ना, उसको आपने छोटा कर दिया प्रोपोर्शनेटली, उसी इमेज को ड्रैग करके छोटा कर दिया, बट विद द आई पॉइंट बीइंग द सेम फॉर बोथ द ट्राइंगल्स, इन सेंटर वाला पॉइंट सेम रख के छोटा हो रहा है वो, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट। सो गाइस थिंक अबाउट दिस, जो O था, जो O पॉइंट था, दैट इज द इन circumcenter of the original triangle, P is the circumcenter of the new triangle O1 O2 O3, right, I point is the same। तो गाइज मैं एक सिंपल लॉजिक बोल सकता हूं ना, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, उनके सारे लेंथ्स के रेशियोज सेम रेशियो में होते हैं, like the sides are all obviously in the same ratio, but any two particular distances जो उन ट्राइंगल के पॉइंट्स होते हैं, like telling you the case is let's say कोई पर्टिकुलर मीडियन की बात करें, सो मीडियंस की लेंथ भी तो सेम रहती है ना, मतलब सेम रेशियो में रहती है, एंगल बाइसेक्टर्स की रेशियो भी सेम होती है एंड सो ऑन, बिकॉज दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हर तरह के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का रेशियो सेम रहेगा डिस्टेंसेस का, राइट। सो जो बड़ा ट्राइंगल ABC था, उसका जो है, एक सेकंड मैं लिख देता हूं गाइस नीचे, ओके इट विल बेटर इफ आई राइट इट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप सबको ये समझ में आ गया दैट ट्राइंगल O1 O2 O3 is similar to triangle ABC, right? This thing is clear because the lines are parallel, right? Because all corresponding lines are parallel. ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस आर पैरेलल, सो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे ए से, या फिर ए क्राइटेरिया से। एंड गाइज व्हाट इज द रेशियोज, लाइक O2 O3 का मैंने डिस्टेंस ढूंढा था, है ना, O2 O3 अपॉन BC, वो रेशियो ढूंढ लेते हैं, वो सभी साइड्स उसी रेशियो में होंगी। सो O2 O3 इज बेसिकली LM अपॉन BC, एंड व्हाट इज दैट, LM कितना था, देखो लेट मी शो हियर, LM इज A by R अपॉन into R minus X अपॉन BC is A, so A times R minus X upon R upon A. So you can see the ratio is R minus X upon R, right? So now knowing this ratio I can write the other three sides as well, right? उसके लिए चलो जरूरत नहीं है but लिख सकते हैं, and all the particular distances, corresponding distances is going to be in this ratio, right? बोल सकता हूं ऐसा? Alright guys, I think I made a mistake somewhere, okay? यहाँ पे गलत लिख गए थे। So see, bx was this, I replace, okay, मैं यहाँ पे गलती से guys a लिख गया हूँ, मैं उसको सही कर देता हूँ, I think उसके कारण थोड़ी मिस्टेक आ रही थी। So this is going to be x only, है ना, हर जगह सही कर देते हैं। So this is a, okay, here also it is a, here also it is a, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, okay? Let me write it guys, let me correct it, sorry for that guys, आप कैलकुलेशन कर रहे होगे साथ साथ में, I forgot। So guys this is x, तो यहाँ पे भी x आएगा, मैं गलती से a लिख दिया था उसको, nothing is getting cancelled in this anyways, so b minus c common minus x by r, so b minus c r minus x r है, that's it, that was my mistake। so यहाँ पे भी सही कर देते हैं, dx upon dk की वैल्यू r minus x आ रही है, I'm sorry for that guys, sorry for this mistake, okay, anyways no harm done, यहाँ पे वो वैल्यू निकल के आ रही है, okay। so guys this O2 O3 by BC की लेंथ रेशियो आ गई है ना, दोनों ट्राइंगल्स की साइड इस रेशियो में होंगी। So guys, the distance between the incenter and the circumcenter should also be in the same ratio. Okay, I'll write this. So मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. So distances between circumcenter and incenter are also in the same ratio. Are also in same ratio. करेक्ट होना ही चाहिए। सो गाइस नाउ उसी ओरिजिनल ट्राइंगल O2 O3 वाला ट्राइंगल पिक करते हैं, सिंपल है। O2 O3 ट्राइंगल का जो बड़ा वाला ट्राइंगल है O1 O2 O3, उसका डिस्टेंस क्या आएगा, IP, राइट, सॉरी या, सो दैट इज IP अपॉन
लेट मी शो यू इन द डायग्राम गाइस. ओके, नया जो ट्राइंगल है उसका इन सेंटर आई है, सरकम सेंटर पी है, तो आई पी नया वाला सर्कल है, नया वाला ट्राइंगल है O1 O2 O3, उसका डिस्टेंस हो गया. ओरिजिनल ट्राइंगल एबीसी में वो डिस्टेंस क्या है, आई ओ है, दैट इज आई एंड ओ. ठीक है, अपॉन आई ओ. सो आई पी अपॉन आई ओ शुड बी इन द सेम रेशियो एज दिस, आर माइनस एक्स अपॉन आर, जो हमने अभी रेशियो निकाला ये वाला, राइट. सेम एज द साइड्स आर इन द रेशियो. गाइज नाउ इट्स ओवर बेसिकली. सो आप देख सकते हो गाइज, नाउ यू कैन ऑब्जर्व सिंपली that IP upon IO are in the same ratio as dx upon dk. Okay, from this thing देखो, so now I can say IP upon IO are in the same ratio as dx upon dk, right. So guys, अब ये और कभी हो ही नहीं सकता. Now you can see this on this diagram, if dx upon dk is equal to IP upon IO, है ना, and these are three parallel lines, that means I, P and O should be collinear, right. Possible ही नहीं है otherwise, क्योंकि IP is to IO, if it has to be in the particular ratio, है ना, it has to be at a particular point, तो वो straight line के अंदर ही हो सकता है, because dx upon dk का भी same ratio है, क्योंकि आप पिक वो रेशियो कर रहे हो, right. ठीक है ना. आप ऐसे सोच सकते हो, let's say P is not lying on this line and P is somewhere else, right, but IO को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो इस लाइन को px को जहां पे भी कट कर रही है वो भी सेम रेशियो में, तो कट ही नहीं कर सकता सेम रेशियो में, राइट. सो गाइस द पॉइंट इज, फ्रॉम दिस थिंग दिस विल इंप्लाई I, P and O are collinear. This is what will imply that thing. IP upon IO जब आप लेके आ गए कि dx upon dk के इक्वल है, so then you can say that I, P and O are collinear, right. अंडरस्टैंड गाइस, छोटी सी मिस्टेक हो गई उसके अंदर एंड वी करेक्टेड इट, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ओवरऑल दिस इज द सॉल्विंग वे. मतलब थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, आपको लग रहा होगा कैलकुलेशन है ज्यादा, बट गाइस इट्स लाइक आई हैव टू कवर अप सो मेनी थिंग्स लाइक इन दिस, है ना. तो बट ओवरऑल बहुत सारे कंक्लूजन हैं जो आप इसके अंदर डायग्राम के अंदर ड्रॉ कर पाओगे एग्जाम के अंदर ऑटोमेटिकली, बिकॉज मेनी थिंग्स आर प्रीटी मच क्लियरर, राइट. आपको जस्ट डिस्टेंसेस ढूंढने हैं और वो चीजें एक्सप्लेन करनी है. एंड दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन सेंटर देखो सेम रह रहा है दोनों ट्राइंगल्स का, है ना. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज, सिंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आपका जो वो रेशियो है IP is to IO, the distance ratio of the distances between the in center and the ortho center will also in the same ratio as the sides. That is an important concept. वो यूज करके आपका आंसर आ जा रहा है that IP upon IO is same as dx upon dk and hence P has to be collinear with IO. और कोई केस उस लाइन के ऊपर और कोई करेगा भी नहीं. That is the point actually. ठीक है ना. तो px से आप गिरा रहे हो परपेंडिकुलर, तो इसलिए p ही पॉइंट उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, राइट. सो दैट इज द प्रूफ गाइस. आई होप सबको क्लियर है. इट्स क्वाइट लेंथी, है ना. सो दिस इज द सॉल्यूशन एंड द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप गाइस सबको समझ में आया. इफ नॉट प्लीज गाइस यू कैन जस्ट माइंड दैट मिस्टेक जो छोटी सी की थी. आप खुद से कर रहे होगे तो आई होप नहीं होगी वो मिस्टेक, है ना. आप मेरे साथ साथ अगर सॉल्व कर रहे होगे तो गाइस इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सम वन पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, आप दोबारा से वीडियो देखो, you will be surely be able to understand it. वरना दोबारा साथ साथ में सॉल्व करना, you'll surely be able to understand it. ठीक है. Okay guys, that's it for this session. I hope everybody enjoyed it and आपको मजा आया और समझ में आया, लर्न किया कुछ. So please like this video and subscribe to our channel. Okay, so that it motivates us to keep bringing some this kind of questions and their videos, right? So guys, we'll see you in the next video. Till then, keep practicing and all the best. Okay. We'll see you soon in the next video. Bye bye guys. Take care. Bye bye. Hello students. Guys, मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ. Now, since we are towards the end of this session, this right, because 30th October को exam है, as you all guys must be knowing for our IOQM, right? We are going to launch the time भी बहुत कम है, so we are going to launch the last course जिसके अंदर theory पढ़ाई जा रही है. And this is one is a recorded course. Daily session रहेगा आपका, है ना. Tests भी रहेंगे इसके अंदर. So we are going to launch this course named Last Mile, because नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, because this is the last possible course that you could do or you could opt for, है ना, for IOQM if you are targeting IOQM for this year or next year as well, जिसके अंदर आपको थ्योरी मिलेगी, सारी की सारी थ्योरी कवर होगी. वो फीचर्स मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूँ. So important thing is this batch is for class 7th to 12th. 7th क्लास के स्टूडेंट्स although इस साल एग्जाम नहीं दे सकते हैं, बट ये फॉर दो स्टूडेंट्स एक्चुअली उनको क्या होगा
बहुत ज्यादा इंसाइट मिल जाएगा. सो सी मेनी थिंग्स माइट हैपन. 7th क्लास के स्टूडेंट्स को यू नो हो सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आए बिकॉज उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं की हुई हैं. बट द थिंग इज काफी चीजें समझ में आ भी जाएंगी एंड दोज थिंग्स विल हेल्प अ पर्सन, हेल्प अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th टू एक्सप्लोर मोर. उसके आगे उसको समझने में टूल मिल जाएगा उसको समझने का, जिससे कि उसको समझने में बहुत ईजी होगा आगे के टाइम में. सो उसका लेवल अप तो पक्का हो जाएगा. दैट इज द रीजन फॉर क्लास 7th. और बाकी के सब स्टूडेंट्स तो इस साल में भी दे सकते हैं एग्जाम, तो उनके लिए तो ये कोर्स बेनिफिशियल होगा ही होगा, राइट. द डेट फॉर द बैच लॉन्च इज 22 अगस्त. सो सर गाइस 22 अगस्त से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगे एंड एवरी डे देयर विल बी अ सेशन. सो फॉर 1.5 आवर. उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूँ, ठीक है. लेट्स सी. So guys, in this course, you'll be getting 40 topic-wise recorded lectures, same lectures that are going on and that have already been, done in IOQM Achievers batch, जो already अभी चल रहा है, तो उसमें sessions हो चुके हैं already. So we have designed a new course of recorded lectures, 40 topic-wise recorded lectures of the same lectures जो भी हमारे course IOQM Achievers में चल रहे हैं. Other than that, you'll get 15 revision lectures. ठीक है, ये अलग से मिलेंगे. These are the revision lectures of the other batches, pre-RMO revision batches that are going on. Okay, and in this course you'll be having 10 part tests and 10 full tests. Once the syllabus is over in the October month, you'll get 10 full tests as well. Okay, and one of the most important thing that you'll get with this batch or with this course is Telegram doubt solving. So guys, if you enroll with this course, right, you'll be added in our Telegram doubt solving group. You'll be added in a group on Telegram in which you can post your doubts, any doubts you have, and those will be answered within 24 hours, okay, by us teachers and our team. Okay, so that is one of the most important aspect of this course. And then you'll get chapter wise assignments. So about 8 to 9 chapters हैं सीधा सीधा. तो हर चैप्टर के लिए आपको असाइनमेंट मिलेगा एंड उन असाइनमेंट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे एज अदर देन ओवर एंड अबव द रिटन सॉल्यूशंस. आपको टेक्स्ट में तो सॉल्यूशंस मिलेंगे, उसके अलावा आपको उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे. इन दोज चैप्टर वाइज असाइनमेंट गाइज देयर आर 3 लेवल्स. आई विल टेल यू दैट बिफोर हैंड. चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स के अंदर गाइज 3 लेवल्स हैं. लेवल 1 इज बेसिकली अंडर प्री-आरएमओ लेवल विच विल हेल्प यू इन गेनिंग ट्रैक्शन विद द टॉपिक, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए टॉपिक के लेवल की, टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स के लिए बेसिकली. And then level 2 is basically IOQM level questions, so that if you have to do, आपके पास टाइम कम है तो लेवल 1 और लेवल 2 जरूर करना इंपॉर्टेंट है, राइट, इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर IOQM. तो गाइज सेकेंड लेवल में के अंदर जैसा मैंने आपको बताया IOQM लेवल प्लस क्वेश्चंस हैं. एंड इन द लेवल 3 यू विल गेट RMO प्लस INMO लेवल क्वेश्चंस. सो दैट विल बी लाइक काइंड ऑफ आप लोगों के लिए टाइम कम है क्योंकि यू माइट skip it, आपकी मर्जी है वो. अगर टाइम है तो you can obviously you should go for it. But level 1 and level 2 are the essential and the most mandatory topics levels kind of thing. तो आपको वो करना ही चाहिए if you are opting for this course. Okay, and as I said, assignments के साथ में आपको उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे. You'll get an Excel sheet जिसके अंदर हर क्वेश्चन का YouTube के वीडियो का लिंक दिया जाएगा for the solution thing. Okay, you can watch the solution as well. And guys, you are getting all of these features and this course at this last ditch effort in 2,777 rupees. The cost of this course is 2,777 rupees, right? But if you apply my code LJ Pro, अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो, you can find the link in the description as well. Then you will get this 10% instant discount, extra discount, and you will be able to get this course at 2,500 rupees. And guys, I assure you, you will get your full value, guys. पता है, मतलब लोग सोचते हैं कि 2,500 rupees मांग रहे हैं, ज्यादा रुपए हैं, ऐसा कुछ है, जो भी है. I would like to tell you guys one thing. हमने इतनी मेहनत से ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है, इतनी चीजें बनाई हुई है. आई एश्योर यू आपको ऐसा कोर्स कहीं नहीं मिलेगा. एंड दैट टू एट सच लो प्राइस गाइस, इसके अंदर हम जो क्वालिटी और जो चीजें दे रहे हैं ना आपको, इट्स लाइक आई वुड से कि दिस इज एक्चुअली प्राइस लोअर फॉर दैट. ठीक है ना, वो तो जस्ट ये है कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फायदा हो. वी आर like pricing it very nominally. So I would suggest if you're positive and you want to have enthusiasm about IOQM, you should not think about the price. आपको इस कोर्स से बहुत फायदा होगा. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई गाइस, ये कोर्स के अगर थ्रू निकल गए ना आप, इफ यू डू अटेंड दीज 40 लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, आप ये जरूर सोचोगे बिफोर 40
लेक्चर एंड आफ्टर 40 लेक्चर्स आपका लेवल का डिफरेंस आप खुद महसूस करोगे. यू विल योरसेल्फ फील द डिफरेंस इन योर ओन नॉलेज आफ्टर अटेंडिंग दिस 40 lectures. Okay, so that is all from my side, guys. Though you have the links in the description, आप click कर सकते हो, you will be directed to the page and you can enroll in our course directly. Okay, so I would suggest guys, अगर आप लेना चाहते हो तो जल्दी ले लेना, so that again backlog create ना हो. 22 अगस्त को बैच शुरू हो रहा है, so आपको देर ना हो जाए उसमें, फिर से backlog ना हो जाए, so that you feel pressurized, extra pressurized. So if you want to do qualify OQM और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, so this is the course, आप इसको अटेंड कर सकते हो. Okay, so that is it from my side, guys. Thank you, guys. I hope you enroll in our sessions and you'll come to our classes and it will benefit you, I hope. Right? Thank you, guys. Bye bye. Take care.